Hello friends and welcome to our channel ICS Easy Learn. So today we are going to deal with the part 3 of our chapter the circulatory system. So in this video it will be going to be a short video because we are just going to cover two topics. The first one is blood clotting in a test tube and the second one is our blood transfusion and blood groups, that is the ABO and RH systems. So we are just going to deal with these two topics in depth. So let's start. And let's start from the blood clotting in a test tube. Okay, so you could see that we have two test tubes. In the first test tube we have serum, that is a yellow part. Then we have the fibrin threads, and also we have corpuscles, like you could see RBCs. Now what would happen after a certain point of time? These fibrin threads would just catch all the corpuscles and make a clot, which you could see, and the left out yellow part is known as serum. Okay, now this is basically blood clotting in a test tube and nothing more than this. Now we could see next is hemophilia is a genetic disorder in which blood does not clot properly due to lack of blood clotting proteins. मतलब जो blood clotting proteins simply means they are saying platelets. So whenever there is a lack of platelets, or there is insufficient amount of platelets, at that time there is a situation that is known as hemophilia, and it is a genetic disorder. Means it is you get it from your inherited from your parents or your grandparents. That's the flow, it just move on. So in the situation you just your blood doesn't clot that much easily. And the next, so hemorrhage is a condition which we get when we have low count of platelets, and hemophilia is a genetic disorder. Okay, so this is the differentiation. Okay, so simply you can say that hemorrhage is you have certain deficiency of some of the vitamins, we can say some of the minerals. That's why platelets are not able to form that much. But hemophilia is a genetic, means if you are taking a proper diet at that time also, if your parents have this, you're just going to suffer from it. Okay, now this is all about the clotting in a test tube. Now we are going to study about the ABO system for blood transfusion. So before studying about the ABO system, you must be familiar with the four these most commonly used words that you can see in your textbook. So the first one is antigen. तो एंटीजन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है जो हम सब में से हर एक के जो ब्लड होता है, आरबीसी होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो एंटीजन दो तरह के होते हैं, ए एंड बी एंटीजन. ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है? जो इस एक एंटीजन है जो एक एंटीजन को अपोज करती है, उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी. ठीक है, डोनर कौन होता है? जो ब्लड देता है, और रेसिपिएंट कौन होता है? जो ब्लड लेता है. ठीक है, और जो ये एबीओ सिस्टम और आरएस सिस्टम था, ये किसने, वी कैन से दैट these concepts were discovered by Carl Landsteiner. Okay, now let's see this. So हमें पता है कि हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ. ठीक है, 4 तरह के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं. तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन ए होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था एंटीबॉडी और एंटीजन दो ही तरह के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी. किसी के अंदर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? उसके अपोजिट. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग होंगी. मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी. और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, मीन्स उसके ऊपर किसका एंटीजन है? एंटीजन बी. और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी. अभी जो हमारा ए बी होता है उसके अंदर दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी और बी बी. इसीलिए इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि दोनों एंटीजन्स हैं. उसके बाद जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं होता, बट एंटीबॉडी दोनों की होती है, ए की भी और बी की भी. तो यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है. यहाँ पे एंटीजन ए बी दोनों है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, और अगर कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों की. ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था. अभी हम एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या नहीं होता? कोई भी एंटीजन नहीं होता.
कोई भी एंटीजन नहीं होता तो ये हर एक को क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है ताकि कोई इसके ऊपर एंटीबॉडी एक्ट कर सके। तो अगर कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई एंटीबॉडी एक्ट भी नहीं करेगी। तो जो एंटीबॉडी ए की एंटीबॉडी क्या होगी, बी की एंटीबॉडी क्या होगी, ए, और ए बी की कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है। तो ये तीनों की, चाहे वो बी हो चाहे ए हो चाहे हो ही ना, तो ओ जो है वो तीनों को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं होता जिसके ऊपर कोई एंटीबॉडी काम करे। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी एंटीबॉडी का इफेक्ट नहीं है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो हर एक ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आई हमारी कि जो हमारा ए बी होता है, अभी ए बी के अंदर क्या नहीं होता, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। मतलब कि अगर ए देगा तो ये इससे भी ब्लड ले सकता है, बी देगा तो इससे भी ले सकता है, और ओ से तो ले सकता है। तो ए बी जो है वो तीनों से ले सकता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप सिर्फ ए से ही ले सकता है, ठीक है, और ओ से ले सकता है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है या तो वो ए से ले सकता है या फिर वो ओ से ले सकता है। ऐसे अगर हम बी की बात करें तो बी या तो सिर्फ बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, और अगर हम ओ की बात करें तो ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और अगर हम ए बी की बात करें तो ये ए बी और ओ तीनों से ले सकता है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, ए जो है वो ए या फिर ओ से, बी जो है बी या फिर ओ से, ओ सिर्फ ओ से, और ए बी तीनों से, ए बी और ओ। तो इसलिए यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, ओ को, क्योंकि तीनों को ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको कहते हैं, ए बी, क्योंकि तीनों से ब्लड ले सकता है। ओके, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसको एक बार ड्रॉ करो और आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। ओके, और बहुत इजी है। लाइक रीजस जो मंकी होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे थोड़ी सी। तो हमारा जो सेकेंड सिस्टम है वो है RH सिस्टम, और RH स्टैंड्स फॉर रीजस मंकी विच यू कुड सी ओवर हियर। तो दो तरह के होते हैं इसमें भी, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो आपने देखा होगा कि A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव A नेगेटिव, और O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है एक हमारे पास होता है एंटीजन D, वो एंटीजन D जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं RH नेगेटिव। ओके, तो ये है हमारा एंटीजन नंबर D, और जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे RH पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं होता उसे RH नेगेटिव। और इसे रीजस RH से क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले रीजस मंकी के अंदर हमने स्टडी किया था। ओके, what is the role of RH factor in pregnancy? So during first pregnancy, RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative, तो यहाँ पे RH positive आएगा। So during first pregnancy, RH positive antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother, as the two bloods are well separated by placenta. However, at the time of delivery, there are chances of exposure of the maternal blood to small amounts of RH positive blood of the fetus. This mother's body starts preparing antibodies against RH antigens in her blood. In case of subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother can leak into the blood of the RH positive fetus and destroy the fetal RBCs. This would be fatal for the fetus or could cause severe anemia and jaundice. This condition is called erythroblastosis foetatis. Now, I know कि आपको कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ऊपर से गया है। पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद आप एक बार इस पैरा को पढ़ना, एंड देन आई विल गिव यू 100% assurance you are going to understand it well. So let's start. So एक चीज़ हम सबको पता है, मान लो कि कोई डोनर है और उसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, और जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप B है। नाउ अब क्या होगा, जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके पास जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है, ये देखते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके पास एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी B होगी, और B के पास एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी A होगी। अब जब A ब्लड ग्रुप का बंदा B को अपना खून देगा तो एंटीजन क्या है, A,
और बी के पास एंटीबॉडी भी क्या है, ए। तो ये ए जो है इस ए को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा या फिर इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जो ये ए वाला एंटीजन इसकी बॉडी में जाएगा तो जो ये वाला एंटीबॉडी है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और जो ये वाला एंटीबॉडी है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे कि कोगुलेशन मतलब कि क्लोट बन जाएगा ब्लड के अंदर। तो हमारे पूरे शरीर में क्लोट्स बन जाएंगे। आपने कभी सुना हो कि हमारे खून में गांठें बन जाती है, वो क्यों बनती हैं, वो क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, और इसे हम कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग कहते हैं ब्लड की। जब क्या होता है, कोई भी डिफरेंट ब्लड ग्रुप का बंदा किसी और डिफरेंट ब्लड ग्रुप के बंदे को खून देता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है। इसीलिए हमेशा क्या होता है, जब भी ब्लड जो है वो दिया जाता है दूसरे बंदे को तो उसका टेस्ट होता है कि मतलब कि कंपैटिबल जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको मिलाया जाता है। तो ये हम सबको पता है कि अगर हम ए ब्लड ग्रुप के बंदे का खून बी ब्लड ग्रुप के बंदे को देंगे तो कोएगुलेशन होगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अभी ऐसा ही नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है। मतलब कि अगर एक के पास है ए पॉजिटिव और एक के पास है ए नेगेटिव, तो दोनों का ए है, बट ए पॉजिटिव जिसके पास खून है वो ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं आगे कि अब प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल है। सो नाउ यू जस्ट कंसीडर एक फादर है और एक मदर है। ठीक है, तो जो फादर है उनका जो ब्लड है वो है RH पॉजिटिव और मदर है उनका है RH नेगेटिव। ओके, सो अब क्या होगा, जो इनका चाइल्ड होगा उनका भी ब्लड ग्रुप जो होगा उसके अंदर क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में होगा क्या, अभी ये हमारे पास मदर है और मदर का हमें पता है मदर का है नेगेटिव। ठीक है, बट मदर की वॉम में जो चाइल्ड है उसका क्या है, पॉजिटिव है। अभी जब भी प्रेगनेंसी का टाइम होता है 9 मंथ्स तक जो चाइल्ड मदर की वोम में रहता है उनका जो ब्लड है जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो वेल सेपरेटेड रहता है विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा, वी नो इट। बट एट द टाइम ऑफ लेबर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी चाइल्ड का कुछ ब्लड जो है वो मदर को सेंसिटाइज कर जाता है। मतलब कि चाइल्ड का कुछ जो ब्लड है वो मदर की ब्लड के साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। कि अगर मदर के अंदर नेगेटिव एंटीजन है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव एंटीबॉडी है तो मदर क्या कर देगी, जो चाइल्ड के अभी हम इस चाइल्ड को इरेज करते हैं बिकॉज आफ्टर डिलीवरी द चाइल्ड इज आउट, बट जो ब्लड मिक्स हुआ है जो ब्लड मिक्स हुआ है दैट कंटेन पॉजिटिव। तो अभी मदर क्या करेगी, जब पॉजिटिव आयंस मदर की बॉडी में एंटर करेंगे तो मदर की जो नेगेटिव जो RH नेगेटिव है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे पॉजिटिव के। तो फर्स्ट टाइम पे मदर को ऐसा कुछ नहीं लगेगा, बट मदर के अंदर पॉजिटिव के लिए इन पॉजिटिव के लिए एक एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इस टाइम मदर को कुछ नहीं हुआ, बट नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट चाइल्ड आएगा और उसके अंदर भी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा तो उस टाइम पे मदर की जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो इस जो सेकेंड चाइल्ड है इसके, ये हमारे पास सेकेंड चाइल्ड है, इसके पॉजिटिव पे अभी मदर जो है उसके अंदर क्या बन चुकी है, एंटीबॉडीज़ फॉर पॉजिटिव। ये एंटीबॉडीज़ जाके जो चाइल्ड के पॉजिटिव RH पॉजिटिव हैं उनके साथ कोगुलेशन क्लोट बनाना स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि हमने पढ़ा था जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो एक्ट करती हैं दूसरे के साथ तो वो क्या बनाती है, कोगुलेशन करती हैं, क्लोट बनाती है। तो वो चाइल्ड के अंदर क्लोट बना देगी। ठीक है, वो उनको किल कर देगी। इससे जो हमारा चाइल्ड है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, जिसे हम फॉइटल डेथ कहते हैं, या फिर उसको अनीमिया या फिर जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए RH का बहुत ज़्यादा रोल है प्रेगनेंसी के अंदर। ओके, और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया देन यू कैन जस्ट व्यू दिस वीडियो अगेन और यू कुड जस्ट राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कुड जस्ट एक्सप्लेन यू मोर बेटर देन दिस। बट अगर अभी तक नहीं आया सो आई विल ट्राई अ लिटिल मोर हार्डर दिस टाइम, यू कुड जस्ट
view 2 minutes more so that you would get it again, or you can revise it if you have get it already. So let's start it again. It's a RH पॉजिटिव मैन, ठीक है। तो ये क्या है, RH पॉजिटिव है। अभी जब RH पॉजिटिव और जो फादर है वो RH पॉजिटिव होगा और जो मदर है वो RH नेगेटिव होगी, तो जो फॉइटस बनेगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव, एज यू कैन सी, ठीक है। वोम के अंदर क्या है, RH पॉजिटिव और बाहर क्या है, RH नेगेटिव। अब क्या होगा, RH पॉजिटिव फिटस एंटीजन कैन एंटर द मदर ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी। तो अभी डिलीवरी के टाइम जो ये पॉजिटिव है ये मदर की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, और जो आप यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस गए थे उसके अगेंस्ट क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडीज, विच यू कुड सी लाइक दिस ग्रीन पोर्शन लाइक दैट। तो ये क्या है, ये एंटीबॉडीज है अगेंस्ट दिस पॉजिटिव। तो एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि अगर नेक्स्ट टाइम ये पॉजिटिव जो है वो मदर की बॉडी में एंटर किए, इस वुमेन की बॉडी में अगर दोबारा से पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो ये एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगे। बट इन द नेक्स्ट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी, बट अगर नेक्स्ट चाइल्ड जो है, सेकेंड चाइल्ड है, वो भी RH पॉजिटिव है, मदर्स एंटी RH एंड एंटीबॉडीज विल अटैक फीटल रेड ब्लड सेल्स। अब क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ पहले बनी थी इस पॉजिटिव के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज़ जो पॉजिटिव है उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको किल करेंगे, जिससे कि जो फॉइटस है, जो चाइल्ड है, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बिकॉज जो उसकी RBCs हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा एंड दे विल जस्ट डिप्लीट, ऑल द RBCs विल डिप्लीट। या फिर कुछ कंडीशंस में होता है कि कुछ लेवल तक होता है, मीन्स बहुत कम एंटीबॉडीज़ बनती है, इसीलिए कुछ बहुत कम जो है चाइल्ड के RBCs को मारा जाता है, जिससे कि उसको अनेमिया हो जाता है, ठीक है। बट वो आफ्टर डिलीवरी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, आफ्टर गुड मेडिकेशन एंड ऑल दैट, ओके। सो आई थिंक अब आपको क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आई taught you this. So this is the last part for today's video. From the part 4, so from our next video we are going to start the human circulatory system, and afterwards about the vessels, of course, and a lymph, or about the tissue or the intracellular fluid, and then a chapter, the circulatory system, would be completed. So in the next video we are just dealing with the circulatory system, like we are just going to read about what do we mean by the heart, okay. That's the main portion of this chapter. So thank you for watching our video.